I welcome you all to Microsoft Azure Pakistan Community February 2022 meetup. My name is Uzair Paraja and I am the organizer of this meetup group. Before moving on with today's presentation, I would like to discuss some housekeeping rules with you. We plan to meet up online at least once a month on Saturdays. The online meetings will be organized using Microsoft Teams. The online meetings will be recorded and later these recordings will be uploaded to Microsoft Azure Pakistan Community YouTube channel. You are kindly requested to please mute yourselves during the meetings. The meetup time would be around 1 hour to 1 hour and 30 minutes. There would be 10 to 15 minutes for Q&A session in the end. And you are kindly requested to write your questions in the chat window. There are a few URLs that I would like to share with you. This is the URL for our LinkedIn group. And I would be posting about the upcoming webinars in this LinkedIn group. Then this is the URL for our YouTube group, where YouTube channel where I would be uploading the meeting presentations so that you could get back to them. Then this is the URL for our Twitter, where I would also be uploading about upcoming webinars. I would be sharing these three URLs in the chat window so that you could subscribe to them. Today, Asudullah will be telling us about how to create a first pipeline, and he would also be discussing about Azure DevOps. And DevOps is a set of principles that combine software development and IT operations, and it aims to shorten the system development lifecycle and provide continuous delivery and high software quality. And in today's session, Asudullah will focus on basic concepts of Azure Pipeline and with a practical demonstration of building a .NET application using a pipeline. And I hope you will find today's presentation very interesting. There are also few upcoming webinars that I would like to discuss with you so that you could also register for them. On March 26th, Joanna Anderson, who is an MVP, she will be telling us about the different patterns of Azure durable functions. And in this session, you will learn about the fundamental concepts you need to know in coding serverless functions, the durable functions, the extension of durable functions that enable developers and cloud engineers to create successful stateful workflows. And I hope for the developers this session would be very useful. Joanna Anderson, who is a MVP, she is also running a Azure user group called Azure User Group Sweden. Then we also have another upcoming webinar in May, where Mohammed Zishan, who is a very skilled DevOps engineer, will be telling us about automating infrastructure deployments with ARM templates and Azure pipelines. And in this session, we will learn about ARM templates, working with building pipelines, and creating multi-stage release pipelines to provision and infrastructure in Azure. I hope you will find these webinars very interesting. So today we'll be discussing about how to create our first pipeline using Azure DevOps, and Asadullah will be telling us about it. So Asad, please feel free to share your screen, and the stage is yours. See my screen? Yes. Okay, perfect. Okay, thank you, Zed, for giving me this opportunity. You guys can stop me in between if you guys, feel कि मेरी आवाज clear वगैरह नहीं आ रही. Stop me and I'll see what I can do. Okay, perfect. Okay, perfect. So basically, आज जो सारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली मैंने कुछ अर्सा पहले उजैर की पोस्ट देखी थी जहाँ पे इन्होंने इट वाज अ कॉल फॉर स्पीकर्स कि आप लोग अप्लाई करें और यू गाइस कैन टॉक ऑन एनी टॉपिक. सो मैंने ये टॉपिक प्रेजेंट किया था डेवऑप्स. नॉर्मली डेवलपमेंट की हमें कंपनीज के अंदर कल्चर मिल जाता है, प्रैक्टिसेस मिल जाती हैं, लेकिन ये बहुत कम प्रैक्टिसेस मैंने बाहर सॉफ्टवेयर हाउसेस में देखी हैं जहाँ ऑटोमेशन पे और डेवऑप्स के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. मैं भी बैकग्राउंड मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है, तो आई वांटेड टू शेयर दिस नॉलेज. आई एम नॉट अ प्रो एट डेवऑप्स बट आई थिंक थॉट जितना मुझे पता आई शुड बी शेयरिंग इट सो दैट
जो हम नॉर्मल डेली रूटीन टास्क हैं जो इंतहाई हमारा बिल्ड प्रोसेस कॉम्प्लेक्स किया होता है जिन्होंने उसके हम कुछ जनरली बात करें तो इट इज मोर ऑफ अ डिस्कशन सेशन आई वुड वांट इट टू बी इंस्टेड ऑफ के इट इज कैन बी वन वे सो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मैं थोड़ा अपना हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ ताकि लोग कुछ रिलेट कर सकें और हम इफ यू वांट टू टॉक अबाउट मोर देन डेवऑप्स वी कैन डेफिनेटली टॉक एट द एंड So basically, I completed my bachelor's in software engineering from Zebest till 2007. Just like others, I was working as software developer. I was actually promoted to tech lead position in the software house in Pakistan, and then I was working as software architect till 2021. Recently, last year, I basically, मैंने industry से बिल्कुल sign off कर लिया है. I'm no longer working in industry, and I'm actually pursuing my own business. जहाँ मैं अपनी अपनी अपना अपना प्रोडक्ट कर रहा हूँ जहाँ अपनी प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ which will eventually be launched in 2022. So basically, moving forward, let's start with what actually is DevOps. So first of all, हमें एक बात समझनी है कि DevOps, for example, हम अक्सर चीजों को उनके नाम से हम उनके नाम से कुछ चीजों को रिलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम C# की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है. हम एंगुलर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क आता है. DevOps इज नॉट एक्चुअली अ थिंग इन इंडस्ट्री जिसको आप डायरेक्टली आप कह सकें कि ये DevOps कहलाता है. तो ये दो चीजों को कंबाइन किया गया है. नॉर्मली डेवलपमेंट और ऑपरेशन को कंबाइन करके हम इसे DevOps लेबल करते हैं. कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अर्लियर किसी कैटेगरी में आज से 10 साल 12 साल पहले किसी कैटेगरी में नहीं जाती थी क्योंकि डायमेंशन चेंज हो गई हैं. प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बूम आ चुका है. प्रोडक्ट डिलीवरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं. तो एक एरिया बनाया गया है जिसे डेवऑप्स कहा जाता है, डेवलपमेंट ऑपरेशंस, और कुछ प्रैक्टिसेस डेवलपमेंट टीम से और हमारी सर्वर मैनेजमेंट की जो टीम थी उनसे लेके इसको मिला के डेवऑप्स का नाम दिया गया है. तो नटशेल कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ फिलॉसफीज हैं, कुछ काम करने का तरीका है, कुछ काम पहले होता था उसको ऑटोमेट करने का. तो इन मल्टीपल चीजों को मिला के इनको डेवऑप्स की अम्ब्रेला के नीचे क्लब कर दिया गया है. तो इफ आई टॉक वेरी स्पेसिफिकली तो आज से कुछ अर्सा पहले 10-12 साल पहले हम अपने सीनियर से जब बात करते हैं तो वो हमें कुछ किस्से सुनाते हैं कि यार हमारे पास पहले कट ऑफ टाइम होता था. 7 बजे सब लोगों ने अपना कोड जमा करना होता था. फिर एक बंदा बैठता था, वो सबका कोड इकट्ठा करता था. इकट्ठा करने के बाद वो बिल्ड बनाता था. उसी वक्त कोड मर्जिंग होती थी. कुछ इंटरेस्टिंग किस्से भी सुनने को मिलेंगे कि जब बिल्ड होती थी, मर्ज करते थे, तो पता चलता था 20-30 मिनट के बाद किसी आखिरी डेवलपर का कोड क्रैश कर गया मर्ज होने के बाद. फिर वो बंदा भागता था, सबको वहां मौजूद होना होता था. तो अगर आप गौर करो तो ये कोई रिपीटेबल प्रैक्टिसेस नहीं है. और जिस तरह जो प्रोडक्ट की फ्रिक्वेंसी है डिलीवरी की आज के दौर में तकरीबन you'll be surprised to know कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो वीकली बिल्ड्स के ऊपर हैं. आई मीन वीकली बिल्ड्स इज नॉर्मल. तो अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं या 100-200 डेवलपर आपके साथ काम कर रहे हैं तो जी जो मैंने मैनुअल प्रैक्टिस बताई है कि एक वीकेंड पे कोई बंदा बैठेगा और बैठ के वो इवेंचुअली एक कोड मर्ज करेगा, कंपाइल हो गया तो फिर टेस्ट होना स्टार्ट होगा. इट्स नॉट रियली पॉसिबल. फिर वो जब कंबाइन होना है, अगर कंबाइन कोड को मर्ज करना तमाम डेवलपर्स का इतना बड़ा मसला है तो जरा इसको अगर अगले स्टेप पे ले जाएं और देखेंगे टेस्टिंग कितना बड़ा मसला बन जाती है हमारे लिए. यू कांट रियली टेस्ट इन बिटवीन तो अगर हर वीकली आपने बिल्ड देनी है तो ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क बन गया कि कंबाइन करना है, फिर कहीं किसी टेस्ट एनवायरनमेंट पे टेस्ट करना है, दोबारा फीडबैक देना है. जब से ये प्रोडक्ट बूम बहुत ज्यादा बड़ा है सॉफ्टवेयर का, तो ऑटोमेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो वहां से डेवऑप्स ने एक्चुअली डेवऑप्स वाज बॉर्न. और मैं कुछ प्रैक्टिसेस जनरली बता देता हूँ जो हम नॉर्मली वर्ड सुनते हैं, जिसने बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया है कंप्लीटली प्रोडक्ट डिलीवरी को. तो नॉर्मली हम सुनते हैं कि CI/CD का हम नाम लेते हैं, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी. तो उस पर मैं अगली स्लाइड में बात करता हूँ. लेकिन इन अ नटशेल अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली बिल्ड टेस्ट करना, ऑटोमेटिक रिलीज करना, तमाम प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना, ये सब डेवऑप्स की अम्ब्रेला के अंडर आते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो बेसिकली देयर आर फ्यू बेनिफिट्स ऑफ डेवऑप्स. मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पहले कवर करता हूँ एंड देन लेट्स कम बैक टू दिस स्लाइड. So basically, let's first understand that what CI/CD and CD is. तो continuous integration normally एक practice का नाम है जिसके अंदर हम regular check-ins कर रहे होते हैं. बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनको पता होगा कि हम normally pull request raise करते हैं और हमारा कोड साथ साथ merge हो रहा होता है. तो continuous integration के अंदर हम इंतहाई तेजी के साथ PRs दे रहे होते हैं. Normally at a day end or after fixing a bug or a feature, हम normally
पीआर दे होते हैं, जाके कोड जिसमें अंदर मर्ज होता है, हम कॉन्टिन्यूसली तमाम लोगों का कोड मर्ज कर रहे होते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर। तो वो तमाम चीजें हैं कि अगर कोड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आना है और वो जाके हमें वीकेंड को पता चलना है जब किसी ने बैठ के कोड मर्ज करना है, वो खत्म हो गया है विद एडेप्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। तो नॉर्मली लोग क्विकली पीआर दे रहे होते हैं, क्विकली पीआर मर्ज हो रही होती है, और वही आपको फीडबैक मिल रहा होता है कि if there is a conflict in code, आपको वहीं इमीडिएटली अपडेट मिल जाती है। तो कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग इज अ प्रोसीजर जहां पे आप फॉरन कोड मर्जिंग के बाद एक आपकी टेस्टिंग पाइपलाइन होती है जिसको आप क्विकली रन करते हैं, जिसके अंदर आपने यूनिट टेस्ट लिखे होते हैं, जिसके अंदर आपने एंड टू एंड टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्ट आपने लिखे होते हैं, और आप क्विकली कोड इंटीग्रेशन के बाद, कोड मर्जिंग के बाद आप अपनी टेस्टिंग पाइपलाइन एग्जीक्यूट कर देते हैं, जो आपको इमीडिएटली बता देती है कि आपके कोड ने कुछ किसी और का कोड ब्रेक तो नहीं कर दिया, यहाँ का कोड ब्रेक तो नहीं हो रहा। तो आप इमीडिएटली कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन के बाद कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग आपको immediate result देती है कि how your code will perform after merging. So you can fix immediately if there are any issues. So the last thing is continuous delivery. कुछ लोग continuous delivery कहते हैं, कुछ लोग उसको continuous deployment कहते हैं. So basically ये क्या करती है, ये आपका कोड बिल्ड करने के बाद, उसको टेस्ट करने के बाद, उसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको डिलीवरेबल फॉर्म में तैयार रखते हैं कि अगर किसी ने इमीडिएटली एक लेटेस्ट बिल्ड डिप्लॉय करनी है किसी सर्वर के ऊपर, लेट्स से स्टेजिंग के ऊपर या टेस्ट एनवायरनमेंट के ऊपर फॉर टेस्टिंग, तो you can actually deploy them immediately and मैनुअल क्यूए प्रोसेस जो है वो आपका चल सकता है। मैं जस्ट यहाँ पे एक और चीज बताऊं कि हाउ फ्लेक्सिबल और लूजली कपल्ड द होल डेवलपमेंट टीम या होल एक सॉफ्टवेयर हाउस का जो एनवायरनमेंट होता है या प्रोडक्ट किसी का कोई एनवायरनमेंट होता है, वो कितना लूजली कपल्ड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या था कि एक किसी डेवलपर ने बैठना है, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना है कि अपना अपना कोड सबमिट करें ताकि उसको कोई मर्ज करे, और एक पैकेज बनाने के बाद उसे डिप्लॉय किया जाता था किसी एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि आपकी टेस्टिंग टीम एक डिपेंडेंट हो गई है कि किसी डेवलपमेंट के बंदे ने बैठ के ये एक्टिविटी करनी है, एंड दे वोंट बी एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली। यहाँ क्या हो गया है कि डेवलपर का काम सिर्फ पीआर रेस करना है, पीआर मर्ज करना है, और आपका जो कॉन्टिन्यूस डिलीवरी पाइपलाइन है उसमें बेसिकली क्यूए के लिए कोड तैयार रखना है डिप्लॉय करने के लिए। सो द क्यूए कैन मैनेज देयर ओन एनवायरनमेंट। उन्होंने एक सिंगल क्लिक से डिप्लॉयमेंट लेनी है अपने लिए, और वो डिप्लॉय करके अपना क्यूए प्रोसेस पैरेलल में रन कर सकते हैं इन द मीनवाइल जब डेवलपर किसी और फीचर के ऊपर काम कर रहा है। तो CI/CD बैकबोन ऑफ डेवऑप्स, जिसने बेसिकली आपका कंप्लीट प्रोडक्ट डिलीवरी लाइफ साइकिल इंतहाई इंतहाई ऑटोमेट कर दिया है, इंतहाई इजी कर दिया है। आपने अगर इवेंचुअली एक दफा एक अच्छी CI/CD की पाइपलाइन कॉन्फ़िगर कर ली है, तो ऑल यू हैव टू डू इज राइट टेस्ट एट द राइट टाइम। आपने कोड करना है, अपनी पीआर देनी है, पीआर मर्ज करवानी है, and eventually delivery has become very easy. तो पीछे क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें बेसिकली डेवऑप्स ने आने के बाद मिले। डेफिनेटली जो सबसे बड़ी जो हमें बेनिफिट मिला है वो है कि आप एक हाई वेलोसिटी के ऊपर क्विकली बिल्ड दे सकते हैं। आप क्विकली बिल्ड देंगे, डेफिनेटली यू विल एक्वायर मोर कस्टमर्स को क्विकली डिलीवरी देंगे, क्विकली जो आपका टाइम टू मार्केट बहुत कम हो जाएगा। ज्यादा थिंग जो कि बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि आप क्वालिटी को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वालिटी आप किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड टूल्स हैं जो आपके, क्योंकि आप छोटे छोटे टर्म्स में कोड सबमिट कर रहे हैं, तो आप क्वालिटी कंट्रोल बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युअली, आप नॉर्मल जो मैनुअल पुल रिक्वेस्ट का प्रोसेस है आपका, आप उसके साथ बहुत ज्यादा आई वुड से कि आप बेहतर कोड रिव्यू कर सकते हैं। प्लस नॉर्मल ओपन सोर्स टूल आ गए हैं, नॉर्मली मेरे दिमाग में नाम आ रहा है, सुना ओपन सोर्स टूल्स आ गए हैं जो आपकी पुल रिक्वेस्ट या कोड मेरा रिव्यू करके देते हैं। रिसेंटली मेरे पास यूट्यूब के ऊपर एड्स आ रहा था कि पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करने के लिए और प्रोडक्ट बन रही है, तो एक सर्टेन प्रोडक्ट का नाम आ रहा था मेरे पास, बट इस एरिया में एनहेंसमेंट हो रही है। तो आप अपने कोड क्वालिटी को, कि वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह करनी है, अनयूज वेरिएबल तो नहीं है कोड में, आप लेवल सेट कर सकते हैं। अगर आप किसी एंगुलर के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो TSLint एक टूल है ओपन सोर्स, उसकी मदद से आप अपना एंगुलर की जो नेमिंग कन्वेंशन है, जो क्वालिटी है, वो आप मेंटेन कर सकते हैं। अगेन टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन अपडेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम आपकी कंप्लीटली सेपरेट है, जो कि जिसमें आपके सर्वर मेंटेन करने हैं, नॉट रिलेटेड टू योर मेन डेवलपमेंट टीम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही है। अगेन ये कुछ बेनिफिट्स हैं।
इंट्रोड्यूस ऑटोमेशन टू द डेवलपमेंट प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सारा काम पहले मैनुअल होता था, विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स एंड विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स टूल्स आप ये सारा प्रोसेस जो है ये आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अगेन बिल्ड मोर इफेक्टिव टीम्स एंड सपोर्ट एंड टू एंड रिस्पांसिबिलिटी। ये वही पॉइंट है जहां मैंने शुरू में एम्फसाइज किया था कि आपकी जो क्यूए की टीम है, आपकी डेवलपमेंट की टीम है, ये लूजली कपल हो गई है और ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती है। कुछ 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 कंपनीज है जहां मैंने ये प्रैक्टिस देखी है कि वो लोग एक इंडिपेंडेंट क्यूए की टीम रखते हैं, ऑटोमेशन की उन्होंने टीम रखी होती है जो अपने ऑटोमेटेड टेस्ट इंडिपेंडेंटली बना रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंट टीम। दिस इज अनदर टू प्रोवाइड tools better as compared to traditional software development infrastructure management processes. Again, जो मैंने शुरू में बात कही है कि ऑटोमेशन आ गई है, तो जो पुराना ट्रेडिशनल एक प्रैक्टिसेस थी उससे सब लोग हट गए हैं कि किसी डेवलपर ने बैठना है, कोड मर्ज करना है, एंड सो ऑन। तो एजर डेवऑप्स क्या है, एनवायरनमेंट है और वर्चुअलाइजेशन के फ्लैग के अंदर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं। तो एजर का ऑलरेडी एक टूल है जो एजर डेवऑप्स के नाम से एक सर्विस है जहां आपको डेवऑप्स नॉर्मली जो डेवऑप्स के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो किस तरीके से एक डेवऑप्स प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करना है, माइक्रोसॉफ्ट एजर डेवऑप्स के थ्रू आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। Now let's go through the definition. Azure DevOps is a service offered by Microsoft based on the Azure cloud computing platform that provides a complete set of tools to manage software development projects. It consists of 5 key services. Azure boards आपको मिलते हैं। Azure boards की मदद से आप अपने टिकट मैनेजमेंट और जो आप नॉर्मली एजाइल प्रोसेस है वो रन कर सकते हैं। Azure पाइपलाइंस के थ्रू आप अपनी जो CI/CD की पाइपलाइंस हैं वो मैनेज कर सकते हैं, वो रन कर सकते हैं, उनको स्केड्यूल कर सकते हैं। Azure रेपोस के अंदर आप अपनी गेट रेपोस बना सकते हैं और गेट रेपोजिटरी के थ्रू आप अपना कोड वगैरह मैनेज कर सकते हैं। Azure टेस्ट प्लान्स के अंदर आप अपना जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, जो अपने टेस्ट प्लान्स होते हैं वो आप क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। और आर्टिफैक्ट सिंपली आउटपुट ऑफ योर पाइपलाइन। I'll be jumping on to demonstration. Before that, I would like you guys to jump in and give me some ask me some questions if there are any. मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन है जी जी। कि जैसे मैं लीड पोजीशन पे हूँ अभी, तो मैंने डेवलपर को टास्क साइन किया, मैंने पाइपलाइन बना दी, ठीक है। अब डेवलपर ने डायरेक्टली कोड इनपुट कर दिया क्योंकि ऑटोमेट हो गया है, तो मैं इसको रिव्यू कैसे करूँगा कोड को, मतलब अच्छा, कि डेवलपर को, अच्छा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइपलाइन आपने इस स्टेज पे नहीं बनानी जब डेवलपर को टास्क असाइन कर रहे हैं आप, ठीक है। ओके। पाइपलाइन नॉर्मली आपके प्रोजेक्ट के लिए होती है, कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए। आपने जब टास्क असाइन किया है एक डेवलपर को, तो डेवलपर ने आपके पास कोड देने से पहले आपको पुल रिक्वेस्ट रेज करनी है कि आपका कोड मेन रिपोजिटरी में मर्ज कर लिया जाए, ठीक है। ठीक है। वो टाइम है जिस वक्त आपने एक पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करना है। ओके ओके ओके, मतलब पुल हाँ, रिक्वेस्ट को रिव्यू करके फिर मैं पाइपलाइन पे जाके इसको मैं पोस्ट करूँगा। आपने रन कर देना है, एग्जैक्टली। ठीक। ओके, सो आई विल रियली अप्रिशिएट कि अगर कुछ और क्वेश्चन है, वरना आई कैन मूव फॉरवर्ड। परफेक्ट। ओके, सो मैं मूव कर रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर। मैंने एक अकाउंट साइन अप किया हुआ है, मेरे पास एक पुराना अकाउंट है। अच्छा, यहाँ एक कैवेट है। बेसिकली मैंने देखा है कि जब आप नया डेवऑप्स का अकाउंट साइन अप कर रहे हैं तो वो आप लोगों को नया कंप्यूट इंस्टेंस नहीं दे रहे। इसका मतलब है कि आप लोग अपनी पाइपलाइन रन नहीं कर पाएंगे। आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है माइक्रोसॉफ्ट को कि वो आपको कुछ कंप्यूट इंस्टेंस साइन करें। तो मेरे पास एक पुरानी डेवऑप्स का एनवायरनमेंट था, मैं उसी को भी इस्तेमाल करूंगा। तो मैं थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझा देता हूँ कि मैंने एनवायरनमेंट बनाया उसका आर्किटेक्चर क्या है। सॉरी, मेरा पहले आपको पावर पॉइंट नजर आ रही है। सो कितने लोग डेवऑप्स देख पा रहे हैं अभी, एजर डेवऑप्स? सर व्यू दिख रहा है एजोटिया। ठीक है, परफेक्ट। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरा कोड कहाँ पे है। मैंने एक सैंपल एंगुलर की एप्लीकेशन अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर बनाई है, जिसके अंदर मैंने अपना एक बिल्कुल सैंपल एप्लीकेशन है एंगुलर की जो मेरे विजुअल स्टूडियो के अंदर है। इसको मैंने चेक इन किया हुआ है एक रिपोजिटरी के अंदर, जो कि एजर डेवऑप्स के अंदर मेरी रिपोजिटरी है। एंगुलर नाम है मेरी रिपोजिटरी का।
तो अगर आप रिपोजिटरी के अंदर देखें तो मेरा एक फोल्डर बना हुआ है हेलो वर्ल्ड, जिसके अंदर आपको एंगुलर की एक एप्लीकेशन नजर आ रही है। ठीक है, सोर्स कोड है एंगुलर का, एक कंप्लीट ब्लैंक एप्लीकेशन है। तो चूंकि अभी क्वेश्चन दिया आया था कि किस तरीके से कोड को रिव्यू किया जाएगा, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि मैं पहले एक ब्रांच बनाता हूँ जिसके अंदर मैं फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लोग चेक इन करेंगे। तो मैं सिंपली मैं अपनी ब्रांचेस के अंदर जा रहा हूँ। तो जब भी काम करना है हम नॉर्मली एक लोकल ब्रांच बनाते हैं और ब्रांच आप बताते हैं कि आपने किस ब्रांच से बनानी है। तो बेस्ड ऑन मेन ब्रांच आई क्रिएट अ टेस्ट ब्रांच। ठीक है, तो मैंने कसरत के नाम से एक ब्रांच बनाई है। इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस कि आप मेन ब्रांच के अंदर काम नहीं करते, हमेशा एक आप सब ब्रांच बना के काम करते हैं ताकि लोग रिव्यूज वगैरह इन्वॉल्व हो सकें बीच में। तो मैं एक सिंपली लेट्स से एक एचटीएमएल फाइल के अंदर सिंपली चेक इन कर देता हूँ, टेस्ट चेक इन। अब अगर मैं चेंजेस के अंदर जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस फाइल के अंदर मैंने चेंजेस किए हैं। इस फाइल के अंदर मुझे चेंज सेट दिख रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि एंड जस्ट कंपेयर भी कर लेते हैं पुराने वर्जन से कि चेंज क्या हुआ है। यहाँ मैंने सिंपली अपना नाम लिख दिया है। यहाँ पे मैंने चेंजेस के अंदर अगर मैं जाऊँ तो मैंने इसको स्टेज किया, जिस फाइल को आप स्टेज करते हैं वही जाती है। मैं सिंपली इस कमिट को पुश कर दूंगा। लेट्स इमेजिन आपके डेवलपर ने काम करके अपना काम सबमिट कर दिया है। सबमिट कर देने के बाद आपने पुल रिक्वेस्ट के अंदर जाना है और ये आपको बता देगा कि आपने रिसेंटली एक ब्रांच अपडेट की है, सो क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। तो सिंपली यहाँ आपने ऊपर बताना होता है कि आप किस ब्रांच से किस ब्रांच में पुल रिक्वेस्ट देना चाह रहे हैं। ये पुल रिक्वेस्ट के अंदर ऑलरेडी प्री फिल्ड चीजें बता रहा है आपको। यहाँ मैं सिंपली इसको क्रिएट कर दूंगा। तो ये मेरी पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि लोग इसके ऊपर पॉलिसीज लगा देते हैं। कंप्लीट का बटन सबके लिए इनेबल नहीं होता। जो भी आपका कोड रिव्यूअर है वो आपने अपनी रिपोजिटरी के ऊपर उसको एज कोड रिव्यूअर ऐड करेंगे, तो जो बंदा पुल रिक्वेस्ट बना रहा है वो इसे कंप्लीट नहीं कर सकेगा। तो इमेजिन करें राइट नाउ मैं एज अ रिव्यूअर अंदर आया हूँ, तो मैं जाके फाइल्स के अंदर देख सकता हूँ क्या चेंज सेट हुआ है पिछली फाइल और अगली फाइल के अंदर। सिंपली आप यहाँ कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं टू टेल द डेवलपर। आप टैग कर सकते हैं कि ये आपने कुछ गलत कमेंट गलत चेक इन कर दिया है। और so you can do a lot of things. Developer can come in and then reply and then resolve the task. So इसको कंप्लीट कर देते हैं फॉर नाउ। ये कोड जाके मेरी मेन ब्रांच के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी मेन ब्रांच के अंदर ये कोड चला गया है। तो जो बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट था इसका प्रेजेंटेशन का, उसके अंदर था कि हमें पाइपलाइन कैसे कॉन्फ़िगर करनी है। तो यहाँ किसी ने एंगुलर के ऊपर काम किया हुआ है? मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ कि एंगुलर पे कितने लोगों ने काम किया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो राशिद ने काम किया हुआ है एंगुलर के ऊपर। तो चलते हैं एक नई पाइपलाइन बनाते हैं टू बिल्ड एन एंगुलर प्रोजेक्ट। यहाँ आपसे ये पता कर रहा है कि आपका कोड वगैरह क्या है। फॉर दिस डेमो मैं जो है क्लासिक एडिटर यूज करूंगा टू क्रिएट पाइपलाइन। तो यूज द क्लासिक एडिटर पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ ही मुझसे पूछ रहा है कि मेरा कोड कहाँ होस्ट हुआ हुआ है। गिटहब के अंदर, सॉरी गिट रेपो के अंदर मेरा कोड है। इसके ऊपर मैं ब्रांच आई हैव सिलेक्टेड इट। तो यहाँ जो टेम्पलेट मुझे लेना है वो एम्प्टी जॉब है, क्योंकि जॉब्स हम खुद बनाएंगे। अगर मैं इसके अंदर फर्दर जाऊं तो मुझे आगे फर्दर जाके पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली एक एनवायरनमेंट है जहां आप अपने पाइपलाइन को नाम दे सकते हैं। तो मैंने कुछ नाम दे दिया है, बिल्ड एंगुलर। यहाँ आप इसके अंदर फर्दर टास्क ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली पाइपलाइन इज अ सेट ऑफ टास्क जो एक एंगुलर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए। तो सबसे पहले एंगुलर के प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए आपको उसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होती है। तो हमें एनपीएम का एक टास्क ऐड करना है। तो एनपीएम का टास्क मैं ऐड करूंगा। एनपीएम एनपीएम की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए आपको वर्किंग फोल्डर मेंशन करना होता है। वर्किंग फोल्डर के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप ये रिपोजिटरी के अंदर से फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन का हमारी नाम है। मैंने इसको वर्किंग डायरेक्टली में सेट कर लिया है। और आपको एक और टास्क ऐड करना पड़ेगा टू एक्चुअली बिल्ड द एप्लीकेशन। तो मैं एक कस्टम टास्क ले रहा हूँ और यहाँ मैं कमांड दे दूंगा npm build। और यहाँ भी मुझे वर्किंग डायरेक्टरी बतानी होगी।
अच्छा, ये सब कर लेने के बाद जो लास्ट टास्क है कि चूंकि जब आप एनपीएम बिल्ड करते हैं तो आप क्या कमांड लाइन एक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि कंपाइल्ड आपकी एंगुलर की एप्लीकेशन होती है, तो उसने कहीं पब्लिश होना होता है, तो आपको एक और टास्क बनाना पड़ेगा टू एक्चुअली पब्लिश योर आर्टिफैक्ट्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने सिंपली आर्टिफैक्ट्स पब्लिश करने हैं। तो यहाँ आपके लिए अच्छा ये एक लाइब्रेरी है पूरी टास्क की, आप अपने पावरशेल के कस्टम टास्क भी बना सकते हैं, लेकिन ये जनरली कुछ प्री बिल्ड टास्क हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ऑलरेडी प्री बिल्ड दिए हुए हैं। तो मैं पब्लिश आर्टिफैक्ट्स कर रहा हूँ। अगर आप पब्लिश आर्टिफैक्ट्स की डिटेल्स देखें तो यहाँ सिंपली ये लोग जो आर्टिफैक्ट को नाम देंगे वो ड्रॉप है, जो डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी के अंदर आउटपुट जाएगी तो उस डायरेक्टरी से उठा के ये ड्रॉप के अंदर पुश कर देंगे। और जो लोकेशन है एजर जो लोकेशन है आपकी वो एजर पाइपलाइंस ही मैं रख रहा हूँ क्योंकि मैं एजर पाइपलाइन को ही इस्तेमाल करूंगा। तो इसको सिंपली हमें सेव करना है ना, तो आपकी पाइपलाइन सेव हो गई है। अगर मैं पाइपलाइंस के अंदर जाऊं तो यहाँ हमने ऑल के अंदर जाएंगे तो जो पाइपलाइन हमने बनाई है बिल्ड एंगुलर के नाम से वो हमें यहाँ नजर आ गई है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और रन पाइपलाइन पे क्लिक करता हूँ तो सिंपली ये मुझसे कुछ चीजें कलेक्ट करता है। ये मुझे एजेंट पूल पूछ रहा है। एजेंट पूल मैं एजर पाइपलाइन का जो बिल्ट इन एजेंट पूल है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुछ कंपनीज अपना बिल्ट इन डेटा सेंटर बनाती है और उसके अंदर बेसिकली पाइपलाइन बिल्ड करती है। एजेंट की स्पेसिफिकेशन आप दे सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट को किस तरह का एजेंट चाहिए। आप मैक की बिल्ड बना सकते हैं, आप यूबंटू की बिल्ड बना सकते हैं, विंडोज सर्वर वगैरह वगैरह। राइट नाउ हमारी एंगुलर को बिल्ड करने के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इससे सिंपली विंडोज सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। या आपसे ब्रांच पूछ रहा है कि किस ब्रांच के ऊपर आपने बिल्ड करना है प्रोजेक्ट को, तो हमारी मेन ब्रांच के अंदर पूरा कोड है। I'll just move, I'll click run. ओके, सो सिंपली इसको मैंने रन कर दिया है। इट विल टेक सम टाइम। इसको पहले एक एजेंट असाइन होगा। एजेंट इज जस्ट अ मशीन, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। इफ यू सी एक एजेंट हमें असाइन हो गया है। सबसे पहले कोड चेकआउट हो रहा है, उसके बाद हमारा जो npm इंस्टॉल है बेसिकली जो कि डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा एंगुलर के प्रोजेक्ट की, वो चलेगा। Assalamu alaikum. A quick question. Are we recording this? ये ओके जी, उनका लिंक वगैरह दे दीजिएगा क्योंकि मेरी शुरू की थोड़ी मिस हो गई है, तो वो मैं देखना चाहूंगी। Okay, somehow I'm a guest, so I cannot see the chat window. Okay, thank you. बेसिकली हमारा npm इंस्टॉल का जो टास्क है वो चल रहा है। थोड़ा टाइम लेता है npm इंस्टॉल। तो मैं थोड़ा एजर डेवऑप्स के बारे में बता देता हूँ। इट्स अ फ्री सर्विस। 5 लोगों तक की सर्विस फ्री है, लेकिन कुछ आपको लिमिटेड मिनट्स मिलते हैं, बिल्ड मिनट्स, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाइपलाइंस क्रिएट करने के लिए। तो राइट नाउ जो प्रोसेस चल रहा है इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर इस्तेमाल हो रहा है और लिमिटेड नंबर ऑफ मिनट्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो सम और रीजन बिल्ड हमारी फेल हो गई है। यू कैन जस्ट सी किस तरीके से ये सारा डिटेल्स आपको मिलती है। ओके, सो इसने हमारी कमांड को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो लेट्स जस्ट यू नो गेट ओके। बेसिकली जो npm रन बिल्ड कमांड है जो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सिंपली आप जाके इसको सेव एंड क्यू कर दें तो ये आपके लिए एक और बिल्ड क्यू हो जाएगी।
ओके सो बिल्ड एक्चुअली सेम सर्वर पे चली गई है, तो वहाँ कोड ऑलरेडी चेक्ड आउट था, तो ये क्वाइट क्विकली चेक आउट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये एक और चीज है कि डेवऑप्स अगर आप सेम सर्वर पे बिल्ड बार बार रन करते हैं तो चेंज सेट जो है, जो कमिट्स का चेंज सेट होता है उसे वो डाउनलोड किया जाता है। अभी ये टाइम ले रहा है, मैं कुछ क्वेश्चंस कर सकती हूँ? बिल्कुल हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट इट्स जस्ट लास्ट थिंग जो हम कर रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पे ही जाएंगे, तो बेटर नोट कर लें, एक साथ क्वेश्चन पे चले जाएंगे हम लोग। ठीक है चल, थैंक यू। तो ये लॉग्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं जब आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिल्ड कर रहे होते हैं, तो आप लॉग्स को हमेशा गौर से देखा करें, किस डायरेक्टरी के अंदर जाके वो काम कर रहा है, कौन सी कमांड है जो एग्जीक्यूट होने जा रही है। तो बेसिकली जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया और पाइपलाइन सक्सेसफुल है। तो अगर मैं स्टार्ट से देखना शुरू करूं इसको, तो शुरू में मुझे एक पूल असाइन हुआ है एजर पाइपलाइंस के नाम से। एक माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ट इन पूल है। जो मुझे मशीन असाइन हुई थी वो विंडोज थी, 2019 सर्वर था, एंड डेट टाइम आ रही है, और कुछ पैरामीटर्स हैं, किन पैरामीटर्स के थ्रू मेरी पाइपलाइन चलेगी वो सारे यहाँ मेंशन है। अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो हमारी जॉब यहाँ पे इनिशियलाइज हुई है। नथिंग स्पेशल है। यहाँ इस स्टेप के अंदर मेरा सोर्स कोड साइन अप किया गया है, तो यहाँ आपको एग्जैक्टली ये बताता है कि किस रिपोजिटरी को इस्तेमाल किया है। तमाम डिटेल्स, ब्रांच वगैरह यहाँ सब मेंशन है इस्तेमाल करके जिसके ऊपर काम किया जाएगा। यहाँ से हमारे कस्टम टास्क स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमने npm इंस्टॉल रन किया था, जिसने एंगुलर की डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ भी अगेन तमाम डिटेल्स हैं जो इंस्टॉल हुई हैं। इसके बाद एक कस्टम टास्क था हमारा, जिसके अंदर हमने एंगुलर के प्रोजेक्ट को बिल्ड किया यूजिंग अ डिफॉल्ट कमांड, जो कि npm रन बिल्ड की कमांड होती है, और ये हमारा एंगुलर की आउटपुट है। इसके बाद हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो आउटपुट थी हमारी, उसको दोबारा इसने पब्लिश कर दिया है सर्वर के ऊपर इस जगह पे। तो जो सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, अगर उसको ओपन करके देखेंगे तो डी ड्राइव के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमारा सोर्स कोड अवेलेबल होगा। इसके बाद सिंपली इसने रैप अप किया है, क्लीनिंग अप की है, क्लीन की है चीजें, और पाइपलाइन को कंप्लीट मार्क कर दिया है। तो बेसिकली आपका कोड अब एक बिल्ड कंडीशन के अंदर, डिप्लॉयबल कंडीशन के अंदर मौजूद है। एक एडिशनल चीज होती है जिसको हम नॉर्मली रिलीज पाइपलाइन कहते हैं। रिलीज पाइपलाइन के थ्रू आप ये कोड पिक करते हैं इस स्पेसिफिक लोकेशन से, और जिस सर्वर के ऊपर आपने डिप्लॉयमेंट करनी है, लेट्स से यू हैव अ वीएम जिसके ऊपर आपने डिप्लॉयमेंट करनी है, आप सिंपली कोड यहाँ से कॉपी करके ऑब्वियसली थ्रू कमांड थ्रू टास्क आप डिप्लॉय कर देते हैं। So that was the whole thing about build pipelines. यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा towards the questions. So if you guys have some questions, so I'm ready. मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने पाइपलाइन बनाई और उसमें आपने npm इंस्टॉल डिपेंडेंसी इंस्टॉल का कमांड आपने उसमें टास्क ऐड कर दिया, तो ये टास्क बार बार चलेगा जब भी मैं रिलीज बिल्ड करूंगा? क्योंकि रिलीज होती है उसमें चंक्स होते हैं, स्प्रिंट्स होते हैं। वो एक रिलीज आई, फिर स्प्रिंट आया, फिर हमने बिल्ड किया, फिर दूसरा स्प्रिंट आया, फिर बिल्ड, तो हर बार डिपेंडेंसी से बार बार इंस्टॉल होंगी? अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। हाँ, ये सवाल सही है कि डिपेंडेंसीज बार बार इंस्टॉल होंगी, ठीक है। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि एनपीएम का जो आपका प्रोसेस होता है वो लोकल मशीन के ऊपर कैशे बिल्ड कर रहा होता है। तो हर दफा ये उतना टाइम लेने नहीं जाएगा सर्वर के ऊपर जितना पहली दफा लेगा। तो इट विल बी क्वाइट क्विक।
और ये इंतहाई ये बहुत बेहतरीन प्रोसेस है कि ये हर दफा होता है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर कुछ नया वर्जन आ जाता है किसी लाइब्रेरी का, तो हमारा प्रोजेक्ट ब्रेक हो जाता है। तो ये वो ओके जगह है, यही वो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन है कि आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपका कोड ब्रेक तो नहीं हो रहा। हम अक्सर सुनते हैं कि डेवलपर की मशीन पे सब कुछ चल रहा है, जैसे सर्वर पे गए क्रैश हो गया, ठीक है। ओके तो ये वो जगह है, जैसे ही आप कोड चेक इन करेंगे, नॉर्मली कंपनीज ने क्या किया होता है कि बिल्ड पाइपलाइन हर रिपोजिटरी के साथ ऑटोमेटिक ट्रिगर की होती है। जहां आप चेक इन करेंगे वहां बिल्ड पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपको इमीडिएटली बता देगी कि आपके कोड में कोई मसला तो नहीं है। यही वो जगह है जिसको हम कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कहते हैं। यही पाइपलाइन जो रन होती है। तो या कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बार बार रन होगा ये टास्क। और एक और छोटा सा क्वेश्चन एक और है कि सपोज कर ले मैं एजोर डेवऑप्स इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ अपने फ्रॉम फ्रेश, तो इज वी नीड टू बाय अ सर्वर इन एजोर और नो? नहीं, इनिशियली आपको बिल्ड के लिए सर्वर नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है। आपको माइक्रोसॉफ्ट कुछ मिनट्स देता है, कुछ आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन मेरा ख्याल है को 1500-1800 मिनट देता है बिल्ड के। तो आप इतने मिनट फ्री में यूज कर सकते हैं, इसके बाद आपको परचेज करना पड़ेगा। या फिर आप इन हाउस को सर्वर रख सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो वो फिर अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं आप। इन हाउस मतलब है कि मैंने गिटअप जो है इन हाउस रख लिया, सपोज कर ले मैंने नहीं, एजोर गेटअप नहीं, गिटअप यूज। गेटअप यहाँ फ्री है, ठीक है। जो गिटअप या फ्री। आपने, हाँ, अगर आपके पास कोई वीएम है तो वो ऐसा बिल्ड एजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक ओके है, ये पाइपलाइन जहां बिल्ड हो रही है वो आप इन हाउस सर्वर के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं अपने। ओके गॉट इट। जी जी, वो तो बेसिकली जब आपने डिप्लॉयमेंट करनी है, वो तो फिर आपके एंड पे कॉस्ट आ जाती है कि आपने अपने ऊपर इंफ्रा क्या बनाया हुआ है। एजर जिस चीज का आपको कॉस्ट करेगा वो ये है कि अगर आप उनके सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर बिल्ड एंड रिलीज, ठीक है, उसके कुछ 1800 मिनट हैं जो आपको फ्री मिलते हैं, उसके बाद आपको परचेज करने पड़ते हैं। उस लिमिट से भी आप बाहर आ सकते हैं। अगर आप अपनी कोई वीएम यहाँ एज एन एजेंट ऐड कर दें तो वो कॉस्ट भी एलिमिनेट हो जाएगी। तो अप टू 5 यूजर्स वो कॉस्ट कंप्लीटली फ्री है। Yes, could you please show me the publish artifact portion? How does it publish to the server? ओके, सो बेसिकली जो पब्लिशर आर्टिफैक्ट्स का टास्क है, इट इज नथिंग, ये आपकी आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी के ऊपर बेसिकली आपका जो ड्रॉप का फोल्डर है उसको पब्लिश कर देगा इवेंचुअली। ड्रॉप के फोल्डर के अंदर आपके आउटपुट की कमांड जो कंप्लीटली उसको पब्लिश कर देता है। राइट नाउ मैंने चीज देखी है, क्वाइट कुछ चीजें जो हैं वो कुछ चेंज हो गई हैं यहाँ पे डेवऑप्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, जो मैंने इनिशियली बताया कि पहले ही आपको फ्री मिनट्स देते थे, अब आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है टू गेट टू दोस फ्री मिनट्स। लेकिन नॉर्मली आपका जो है जो अच्छा, इसी तरह सिंपली पहले आपको ये मैन्युअली डाउनलोड करने देते थे आर्टिफैक्ट्स आपके, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने वो सर्विस भी बंद कर दी है। ये आपको एक लोकल पाथ देते हैं, तो खाली आपकी जो रिलीज पाइपलाइन होगी इसको एक्सेस कर सकेगी। थैंक यू। Wonderful, Asad. Wonderful. Excellent. This was a very knowledge-intensive session. And thank you very much for showing us a practical demonstration of building a .NET pipeline using Azure DevOps. In few days, I would be uploading this presentation to our YouTube channel so that those people who are not able to join us for some reason, they can watch the recordings. Thank you very much, guys, and have a very nice weekend.